ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਥ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੋ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਚਰਪਟ ਨਾਥ। ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਪੌੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਹੈ, ਮਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਦਰੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਹਾਬੂਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ। ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੂਫ, ਤਜ਼ੱਵੁਫ, ਨਵ ਅਫਲਾਤੂਨਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਤੋ ਸੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਵ ਅਫਲਾਤੂਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਮਵਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਜਸਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਜ਼ੱਵੁਫ। ਤਜ਼ੱਵੁਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਕ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਜ਼ੱਵੁਫ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ? ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਵ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਵਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਕਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਦਾ ਮਿਕਸਅਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਵਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਭਿਵਿਅੰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਕਰਗੰਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮਈਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਕਰਗੰਜ ਮਸੂਦ ਸੀਗੇ। तो इस करके साडा जिहड़ा आंसर इत्थे बी आएगा।
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 100 ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ 100 दारू ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ तो मुहावरा है, ना ये बुझारत है, ना ये टप्पा है, ये की है जी अखाण है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। तो शरीयत मैं पहला क्वेश्चन दे विच भी दस्सिया सीगा तुहानूं कि शरीयत का अर्थ हुंदा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का संविधान। इस्लाम नूं तुसीं ग्रहण करना हैगा, इस्लाम दे तुसीं जदों इस्लाम दे सिद्धांत नूं मनना हैगा तो तुहानूं शरीयत नूं मनना ही पैना है। प्रोफैसर गुलवंत सिंह अक्सर लिखते सीगे, उन्हां दी किताब का नाम है इस्लाम ते सूफीवाद। उहदे विच मुੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ इस गल नूं उन्हां ने दस्सिया है कि इस्लाम वर्गा दुनिया ते कोई धर्म नहीं ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ परंतु मूल रूप दे विच शरीयत का संबंध हैगा जिहड़ा वो इस्लाम दे कर्म कांड दे नाल है, इस्लाम दी कानून दे नाल है। तो इत्थे साडा जिहड़ा आंसर होएगा वो साडा इत्थे ए आंसर आएगा, इस्लामी कर्म कांड। तां नैक्सट है लंगर दी प्रथा किस गुरु साहब ने प्रचलित कीती। हुण 4 आंसर ने साडे कोल इत्थे, गुरु नानक साहब ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने ते गुरु रामदास जी ने। मूल रूप दे विच स्टूडेंट्स कित्थे टपला खांदे ने, स्टूडेंट्स इस तरह इत्थे टपला खा जांदे ने कि जी गुरु नानक साहब ने लंगर दा जिहड़ा सी भुखे साधुआं नूं भोजन खवाया सीगा ते लंगर दा प्रथा उत्थों चली है। बिल्कुल तुहाडी गल सही है कि लंगर दी प्रथा जिहड़ी हैगी आ वो इत्थे चली हैगी है, पर उहनूं विधि पूर्वक जिहड़ा सीगा सुचੱਜੇ ढंग नाल जिहड़ा सीगा विधानक रूप दे विच लागू किहने कीता है, वो गुरु अमरदास जी ने लागू किया। साडा इत्थे आंसर जिहड़ा हैगा ना वो बी आएगा। वो भी मैं तुहानूं दसदा किवें कीता, क्योंकि गुरु साहब ने इस गल नूं जरूरी करता सीगा कि जो भी संगत गुरु के दर्शनां वास्ते आउंदी है उस नूं सब तो पहलां पंगत विच बैठ के संगत ते पंगत दा कनसैप्ट जिहड़ा हैगा वो गुरु अमरदास जी ने दिता सी। उन्हां नूं पंगत दे विच बैठ के बिना किसी भेदभाव तो, बिना किसी छूआछूत तो, बिना किसी ऊच नीच की भावना नूं त्याग के एक सारिਆਂ नूं सीक्वेंस दे विच बैठ के एक थां तो प्रशादा, एक थां तो जिहड़ा भोजन करके फिर गुरु के दर्शन करने जिहड़े अनिवार्य हुंदे सीगे। तो इस करके इहदा जिहड़ा प्रचलन हैगा है लंगर दी प्रथा दा जिहड़ा सही मायनिਆਂ दे नाल जिहड़ा प्रचलन सी वो गुरु अमरदास जी महाराज ने कीता सीगा। हुण एक अगला हैगा मध्यकाली पंजाबी भाषा ते साहित इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इत्थे साडे कोले ऑप्शनस ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज ग्रीयरसन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द पंजाब डॉक्टर लाइनर, पंजाब में उर्दू हाफिज महमूद शिरानी, और चौथी साडे कोले ऑप्शन हैगी आ पंजाबी अदब दी मुख्तसर तवारीख। इहदा नाम तवारीख नहीं हैगा, मूल रूप दे विच तारीख है, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। तो साडा जिहड़ा इत्थे आंसर होएगा ये 4 का संबंध जिहड़ी उपरली किताब हैगी आ इहदा संबंध भाषावां दी निशानदेही नाल हैगा। 544 भाषावां दी वो निशानदेही करदा इहदे विच। सैकंड दी जिहड़ी किताब हैगी आ इहदा संबंध जिहड़ा हैगा पंजाब दी जिहड़ी एजुकेशन सिस्टम दे नाल है। तीजी किताब का संबंध जिहड़ा हैगा वो जस्ट उर्दू भाषा दे नाल है, लश्करी बोली दे नाल है, महमूद शिरानी की किताब है, उहदे नाल संबंधित, उहदे लिटरेचर नाल संबंधित है। पर चौथी जिहड़ी किताब हैगी आ पंजाबी अदब दी मुख्तसर तारीख द शॉर्ट हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर एंड या ब्रीफ हिस्टरी ऑफ पंजाबी लिटरेचर किताब का नाम इहदा, और इहदा उर्दू की किताब हैगी आ डॉक्टर मोहन सिंह दीवाने दी पंजाबी च इहनूं कहांगे पंजाबी साहित का संखेप इतिहास। जे तुसीं पंजाबी च कहोगे, इत्थे उर्दू का ही तत्सम लिखिया होया हैगा। तो ये किताब जिहड़ी साडे आंसर दे विच आएगी, ये किताब हैगी है जिहड़ी सानूं मध्यकाली पंजाबी जां भाषा ते साहित दी जानकारी दिंदी हैगी है। तो साडी आंसर इत्थे जिहड़ा हैगा वो डी आएगा। भारत विच आउण वाला पहला सूफी शेख कौन सी।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ कोल इत्थे 4 ऑप्शनस ने। बहुते साडे स्टूडेंट्स की करते हैगे ने, असी बाबा फरीद साहब नूं पढ़िया हैगा, बहुते साडे स्टूडेंट भुलेखा इत्थे खा जाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब जिहड़े हिंदुस्तान दे विच आए ने। तुहाडी गल बिल्कुल सही हैगी आ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जिहड़े हैगे ने वो हिंदुस्तान दे विच आए हैगे ने। आए हैगे ने चिश्ती साहब, वो आउंदे ने, बिल्कुल ठीक है। पर उस तो पहला महमूद गजनवी दे नाल एक दरवेश होर हिंदुस्तान दे विच आउंदा हैगा जिहदा नाम है हजरत अली बिन उस्मान अली हुजवेरी। जे तुसीं इहदा शॉर्ट नाम, इहदा सही नाम है, कुछ क इत्थे त्रुटि है इन्हां दे नाम दे विच। कई किताबां दे विच मैं देखिआ कि ये नाम जिहड़ा हैगा ये इस प्रकार लिखिआ जांदा है। असलीयत इन्हां दी किताब हैगी आ, उहदा नाम है कशफुल महजूब। उहदे विच जिहड़ा इन्हां दा नाम है, उहदे विच इन्हां दा नाम हैगा हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी। इन्हां दा सही नाम है हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी। इन्हां दी किताब अरबी दे विच बड़ी मशहूर किताब हैगी है, उहदा नाम है कशफुल महजूब। उहदे विच मैं इहदा नाम है बजुर्गां दा, इन्हां दा नाम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी पढ़िया सीगा। तो ये जिहड़े सूफी ने ये महमूद गजनवी दे नाल अपने पीर दे कहण ते हिंदुस्तान दे विच आउंदे हैगे ने। तो साडा आंसर इत्थे बी आएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किस सिलसिले नाल संबंधित सी? जिहड़े हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब सीगे वो बाबा शकरगंज फरीद दे जिहड़े खलीफा सी। खलीफा तो भाव की हैगा वो उन्हां दे उत्तराधिकारी सीगे। तो बाबा फरीद जी का जिहड़ा संबंध हैगा वो सानूं पता है कि वो चिश्ती कबीले नाल है। तो इत्थे साडा जिहड़ा आंसर फिर किहड़ा आएगा? सी, चिश्ती कबीले नाल उन्हां दा संबंध सीगा, चिश्ती जां संप्रदाय नाल उन्हां दा संबंध सीगा। इस्लाम दे मुख रुकन सन इत्थे सन नहीं आएगा। पहली गल ते थोड़ी जी टैक्नीकल्स प्रॉब्लम्स हैगियां ने, साडे वो जिहड़ा बनाउण वाला मुंडा हैगा उहने ना थोड़ियां जिहियां इहदे च प्रॉब्लम्स रखियां हैगियां ने। हन हैगे ने, अज भी इस्लाम दे रुकन ये मन्ने जांदे ने, सन नहीं हैगे, हन। तो ये किहड़े-किहड़े ने? इस्लाम दे 5 रुकन मन्ने गए ने, साडा आंसर सी आएगा। 5 रुकन किहड़े-किहड़े ने वो मैं तुहानूं दसना वा, बड़े याद रखण योग गल है। इस्लाम दे 5 रुकनां दे विच्चों तो सब तो पहला है कलमा, तौहीद दा कलमा हरेक मुसलमान नूं अनिवार्य है। तो सब तो प्रथम है तौहीद दा कलमा। हरेक मुसलमान नूं जरूरी हैगा कि वो कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये कलमा पढ़िया जाता है जो मुसलमान जमदा है ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਤਬਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੁਕਨ ਕਲਮਾ। ਦੂਜਾ ਰੁਕਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਮਾਜ਼। ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। फजर दी, असर दी, मगरब दी, मशरक दी और जुहा दी। 5 नमाज़ां हरेक मुसलमान नूं अनिवार्य हैगियां ने, अपने हर दिन दे अपने कर्म दे विच वो 5 नमाज़ां नूं पढ़े। तीजा जिहड़ा इस्लाम दा रुकन हैगा वा वो है साडा रोज़ा। रोज़ा जिहड़ा रब्बीउल रमज़ान दा महीना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ। ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ अपनी कीती कमाई का 10वां हिस्सा उन्होंने निमित्त कढ़ना, उन्होंने ज़कात आख्या जाता है। और लास्ट का जिहड़ा रुकन है वह है हज। मक्के ते मदीने की पवित्र यात्रा करनी मुसलमान के जीवन का एक अपने आप दे विच एक बड़ा वड्डा उहदा फर्ज है। वो एक जिंदगी दे विच एक हज जरूर करे। सऊदी अरब दे विच मक्का शहर है जिथे मुहम्मद साहब पैदा होए सी, और हज़रत खलील अल्लाह इब्राहिम खलील अल्लाह ने जिस कोठे दे विच बैठ के तपस्या की सीगी वो कोठे दा जिहड़ा ज़ियारत की जाती है, लसाफ ते मरवाह पहाड़ां दे विच वो हैगा वा। तो
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਜੁਲ ਉਮਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਜੁਲ ਜੁਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੱਜੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਜੁਲ ਜੁਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੱਜ ਹੈ ਹੱਜੁਲ ਉਮਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਗਏ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਰੁਕਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਲਾਕ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੌਲਾਕ ਲਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਅਫਲਾਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੌਲਾਕ ਲਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਅਫਲਾਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਿਕ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो एक ओंकार है, जो एक है, ओम ब्रह्मस्मय, शास्त्र कहता ओम अहं ब्रह्मस्मय। तो जड़ा ओम ब्रह्म अहम अम्मस्मही जो हैगा वो तौहीद दे समअर्थकता रखता है, वो तौहीद दा समअर्थी है। अहम ब्रह्मस्मयी दा अर्थ है जो एक है, एक ही है और एक ही संसार नूं चलाउण वाला, विगसन वाला, संसार की पालना करन वाला है। तो इस करके जिहड़ा हैगा इत्थे साडा आंसर आएगा जिहड़ा जी वो है रब दी एकता विच विश्वास, जो एक ही रब है, उस तो सिवा होर कोई नहीं। तो होर सारे देवी देवते उस दे हुक्म दे विच बज्जे होए हन। जे तुसीं तौहीद नूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन वेखना हैगा ना, तो तुसीं एक बार जरूर पढ़िया जो तप प्रसाद सवैये। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी है और 5 बाणियां दे विच उहनूं कंसीडर किया जाता, सवेर वेले की बाणी है तप प्रसाद सवैये। तो वो सवैयां दे विच इस तौहीद का बड़ा ही बाखूबी गुरु महाराज ने जिहड़ा हैगा एक्सप्लेन किया हैगा, सिख धर्म के कंटैक्सट दे विच रख के उन्होंने एक ईश्वरीवाद के कंटैक्सट दे विच। तो ये पढ़ना जरूर चाहिए है जे तुसीं इसनूं एक्सप्लेन देखना चाहुंदे हो बड़े सीधे शब्दों दे विच। महाराजा रणजीत सिंह बारे अवतार सिंह आज़ाद ने किहड़ा महाकाव्य लिखिया? तो पहली गल तो महाकाव्य जिहड़ा हुंदा हैगा, महाकाव्य की थोड़ी जी प्रकृति तुहानूं दस दियां। महाकाव्य प्रबंध काव्य की एक कोटि है, सरगां दे विच वंडिया है, बड़ी लंबी ही बृतांतक कविता है। लंबी बृतांतक कविता नूं हैगा जिहड़ा महाकाव्य आख्या जांदा है। तो इहदे विच साडे कोले जिहड़े हैगे ने वो 4 महाकाव्य ने और चारे महाकाव्य जिहड़े हैगे ने वो अवतार सिंह आज़ाद दे ने। तो ये विचों साडा जिहड़ा सही आंसर आएगा जी वो आएगा बी, महाबली महाकाव्य हैगा जिहड़ा वो महाराजा रणजीत सिंह साहब बारे लिखिया गया हैगा। आनंद साहिब किस गुरु कवि दी कृत है? साडे कोले 4 ऑप्शन ने। ये विच एक चीज़ ध्यान देण योग होर है कि गुरु नानक साहब ये जिहड़ा आनंद साहब है, पहली गल तो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य की वनगी है। इन्हां विच्चों गुरु रामदास जी नूं छड्ड के 3 गुरु साहिबाना ने प्रबंध काव्य लिखे ने। गुरु नानक साहब दा जपजी साहब प्रबंध काव्य है, सिद्ध गोष्ठ प्रबंध काव्य है, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा सुखमणी साहब प्रबंध काव्य है, और जिहड़ा साडा अज आंसर हैगा जिहड़ा असीं देना हैगा वो है साडा गुरु अमरदास जी। ये गुरु अमरदास जी दा प्रबंध काव्य है। गुरु रामदास जी ने किसी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की। तो इस करके जिहड़ा आनंद साहब हैगा वो गुरु अमरदास जी की रचना है। गुरु ग्रंथ साहब विच किन्ने भट्टां दी बाणी दर्ज है? हुण साडे कोल जिहड़ा हैगा इत्थे 4 ऑप्शनस ने, 13, 11, 30, 31। तो साडा जिहड़ा हैगा इहदे सही आंसर साडा आएगा जी 11 भट्टां दी बाणी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 11 भट्टां दी बाणी दर्ज है। एक थोड़ी जी होर चीज़ जिहड़ी याद रखण योग हैगी है वो है कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी हैगी आ वो 31 महापुरुषां दी बाणी है। जिमें 15 भगत, 11 भट्ट, 6 गुरु साहबान, गुरु साहबान और 4 गुरु घर दे प्रेमी, गुरु घर दे प्रीतवान जां प्रेमी प्रीतवान।
तो टोटल जिहड़ी इत्थे गिणती है वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 36 जिहड़े महापुरखां दी बाणी बनदी हैगी इस ढंग दे नाल। भट्टां दी बाणी किस काव्य रूप विच दर्ज है? 4 ने साडे कोल इत्थे ऑप्शनस, शब्द ने, वार है, श्लोक है जां सवैये ने। साडा सही आंसर आएगा जी सवैये। भट्टां दे सवैये सरलेख हेठ बाणी दर्ज कीती है गुरु साहब ने। आदि ग्रंथ विच दी बाणी किन्ने रागां विच है? तो साडे कोल इत्थे जिहड़े 4 ऑप्शनस ने, इहदा जिहड़ा सही आंसर है वो है 31। राग दा प्रपंच बड़ा टेढ़ा है, मूल रूप दे विच राग दा सिस्टम बड़ा वखरा है। राग विद्या जिहड़े दे ज्ञाता ने वो इसनूं जाणदे ने। गुरु साहिबान ने बड़ा ही आसान तरीके दे नाल, हालांकि राग मूल च 31 नहीं है, राग तो बहुत ज़्यादा ने। भाई कान सिंह नाभा ने महान कोश दे विच लिखिया है कि जदों तुसीं रागमाला पढ़दे हो ना तो गुरु साहब लिखते हैं खस्ट राग उन गाए के संग रागनी 30 सबे पुत्र रागन के 18 10 20। गुरु साहब कहते खस्ट राग उन गाए के 6 ते 19 रागां नूं गा के संग रागनी 30, फिर अगे उन्हां दीयां 30 इस्त्रियां ने। सबे पुत्र श्री राग के, श्री राग दे सारे पुत्र ने। उदों बाद दे विच 18 10 20 सब तो वड्डा श्री राग है, अगे उहदे पुत्र ने 18 10 20 किन्ने राग बनाते। परंतु गुरु साहब ने मूल रूप दे विच बड़ा आसान तरीके दे नाल रागां दे संदर्भ दे विच कुझे च समुंदर बंद करता। उन्होंने की किया, बड़े आसानी दे नाल जिहड़े मेन राग ने, मुख राग ने, और रागां उन्हां रागां दी वरतों की जिहड़ी कि आम जन सधारण जिहदी वरतों आसानी नाल कर सके और सिख सके। ये गल वक्री है कि अज असीं रागां बारे किन्ने क सुचेत हाँ जां किन्नी क सानूं इस संदर्भ दे विच जानकारी है, गल दूजी आ जाती है। तो मूल रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच 31 रागां नूं, इन्ने रागां दे वड्डे खिलारे नूं गुरु साहिबान ने बड़े ही सुचज्जे ढंग दे नाल 31 रागां दे विच सिमट दिता हैगा। जिवें तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा अध्ययन करोगे ना एज एक स्क्रिप्चर, एज एक हॉली बुक, मैं एक धार्मिक किताब के नाम के उपर उस चीज़ का नूं कह रहा हैगा वा। तो उस दे विच तुसीं अध्यात्म नूं जदों पढ़ोगे, तुसीं अध्यात्म दी जिहड़ा वेदांत नूं पढ़ोगे, शास्त्रां नूं पढ़ोगे, तुरैत पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, अंजील पढ़ोगे, तो जो उन्हां दा तत्त सार है वो सानूं बणिया तणिया गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच अवेलेबल मिल जांदा हैगा। इहदा मतलब ये हैगा, सानूं ये लगदा हैगा किते ना किते कि जदों गुरु साहिबान ने जां भगतां ने जां महापुरुषां ने जिन्हां ने भी बाणी रची है और जिन्हां दी बाणी गुरु साहब नूं ठीक लगी है, तर्क दी उन्हां दी कसौटी दे उपर खरी उतरी है, वो बाणी नूं ही गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच शमूलीयत दित्ती हैगी है जां उहनूं ही दाखिल कीता हैगा। अदरवाइज़ कच्ची बाणी नूं उन्हां ने दाखिल नहीं कीता। जिवें भगत छज्जू सी, कान्हा सी, पीलू सी जां शाह हुसैन सी, उन्हां दी बाणी दे उपर दुनियावी रंग सी, इस करके महाराज ने उन्हां नूं जिहड़ा गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दाखिल करन तो ना करती, उन्होंने ऐड नहीं किया, उन्होंने एडिट नहीं किया उन्होंने। तो जदों तुसीं पढ़ रहे हुंदे हो ना, गुरबाणी का अध्ययन कर रहे हुंदे हो, तो यह सिस्टम हैगा कि गुरबाणी दे विच तुसीं शास्त्रां दा अध्ययन कर रहे हो। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के श्लोक पढ़ रहे हुंदे हो, उत्थे असीं सानूं ये गल लग रही हुंदी कि उन्होंने ब्रह्म वैवरत पुराण का बड़ा डीपली एनालिसिस किया सीगा। उदों उत्थे सानूं लगदा है कि उन्होंने वराह पुराण नूं बड़ा डीपली पढ़िया सी उस टाइम दे उपर, उहदे कंसैप्टां नूं क्लीयर करके उन्होंने बाणी लिखी है। तो गुरबाणी का संबंध जिहड़ा हैगा उहदे विच जीवन दीयां सच्चाइयां ने, जीवन दे बड़े जिहड़े अध्यात्मक स्पिरिचुअलिटी दे नाल जोड़े गए तत्थ ने उहदे विच जिहड़े विवंजित होए हैगे ने। सो इस प्रकार ये बड़ा ही बहुत वड्डी ये अपने आप दे विच एक दुनिया दे विच किधरे ना मिलण वाली मिसाल है गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जिहड़े। तो नैक्सट है साडा जिहड़ा आसा दी वार नूं किस धुनी दे उपर गाउण दा आदेश है। तो साडे कोल इत्थे 4 मध्यकाली जिहड़ियां प्राचीन वारां ने, उन्हां दे विच्चों 3 ऑप्शनस ने साडे कोल, लल्ले बहलीमे दा, मूसे दी धुनी, फिर जां टुंडे असराजे की धुनी, जां कोई भी नहीं कहंदा। तो साडा सही आंसर आएगा टुंडे असराजे की धुनी। ये किहने ऑर्डर दिता सी, कई बार सानूं ये क्वेश्चन आ जांदा है कि आसा दी वार दे उपर ये किहदा हुक्म सी कि टुंडे असराजे की धुनी गावणी है। तो ये जिहड़ा सी गुरु हरगोबिंद पातशाह वालों हुक्म सीगा कि टुंडे जिहड़ी आसा दी वार है वो टुंडे असराजे की धुनी पर गावणी हैगी है। ये गुरु साहब दे हुक्मनामे दे विच इहदा जिहड़ा जिक्र आउंदा है। डॉक्टर गंडा सिंह इस दी गल करदे ने। तो नैक्सट हैगा साडा सवाल, इत्थे थोड़ी जी प्रॉब्लम है, ये काफा नहीं है गई, ये काफ़ी है।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਕਾਫੀ ਕਿੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਵਿੱਚ, ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ ਵਿੱਚ। तो साडा इत्थे सही आंसर आएगा जी बी, सूफी काव विच जिहड़ी काफ़ी वो मशहूर आ। सूफी कवियां ने काफ़ी की रचना की हैगी है। गुरु नानक साहब ने 12 माह की रचना की है। 12 माह गुरु महाराज का खट ऋतु तो दे नाल संबंधित जिहड़ा 6 रुत्तां तो जिहदी उत्पत्ति होई हैगी आ इत्थे आया हैगा। तो 12 महीनों का जिहड़ा हाल अध्यात्मक पद्धर के उत्ते, अध्यात्मक जिग्यासू के पद्धर के उत्ते गुरु साहब ने दर्ज किया हैगा। तो ये उन्होंने पूछा है कि राग किहड़ा हैगा इहदा जिहड़ा गुरु साहब ने बाणी जी दे विच लिखी है। तो साडा जिहड़ा इहदे विच 4 साडे कोल राग ने, इहदे विच साडा सही आंसर आएगा जी राग तुखारी दे विच गुरु साहब ने 12 माह की रचना की हैगी है। नैक्सट है श्लोक की है, काव रूप है, अलंकार है, छंद है जां शैली है। तो साडा सही आंसर इत्थे आएगा जी ना तो अलंकार है, अलंकार हुंदे नहीं काव रूप, सानू पता है, असी काव्य शास्त्र पढ़िया हैगा। काव्य शैली ना कोई ये शैली कोई स्टाइल हैगा, ना तो पच्छम का, ना साडे भारती स्टाइल दे विच, ना विदर्भी गौड़ी रीति पंचाली, तो ये भी नहीं आता हैगा। तो ना ये पच्छम का कोई है, ना ये छंद है, ना छंद की किस्म भी कोई नहीं, ना दवैया, ना सोठा, ना कोड़ है, ना वर्णिक है, ना मात्रिक है। तो इत्थे साडे कोले की आ गया, फिर जस्ट आंसर ए आ गया। एक कावता का रूप है, एक काव का रूप हैगा। बुल्ले शाह किस विचारधारा नाल संबंधित है? इत्थे 4 ऑप्शनस ने। हुण साडे कोले गुरमत नाल ते उहदा संबंध कोई नहीं, रह गए ने 3 चीज़ां, अध्यात्म, भगती ते सूफी। हुण बुल्ले शाह जिहड़े होएगे ने वो सानू क्लीयर कट पता हैगा, भगती नाल संबंध भी उन्हां दा हैगा, अध्यात्मवाद नाल भी हैगा, पर मूल बेस की हैगा, रूट की है उत्थे? रूट की है सूफी। क्यों पहला उन्हां दा संबंध सूफीज़म नाल है, फिर भगती नाल, ते तीजा अध्यात्मवाद नाल, स्पिरिचुअलिटी नाल उहदा संबंध तीजे थां ते जुड़दा हैगा। तो इत्थे साडा आंसर बी आएगा। पंजाबी दे खेतर विच प्रयोगवाद की लहर आई, इहदे विच 4 ऑप्शनस ने। इहदा सही साडा आंसर आएगा जी 1970 तो बाद दे विच जिहड़ी इह लहर ये पंजाबी दे खेतर विच आई हैगी है। इस प्रकार साडे जिहड़े इस प्रकार दे असी आंसर जिहड़े हैगे ने इत्थे अज असी हल कीते आ। इसे तरह ही तुसी जिहड़े आंसरां नूं जिहड़ो अटैम्प्ट करना हैगा क्वेश्चनस नूं बड़े ध्यान दे नाल, बिना किसी डर तो, बिना किसी घबराहट तो, बिना किसी भय तो तुसी उन्हां नूं हल करना हैगा। उहदी इबारत नूं पढ़ो, पूरे क्वेश्चन की इबारत नूं पढ़ो। इबारत नूं पढ़न तो बाद उहदे नीचे 4 आंसरां नूं देखो। ये नहीं हुंदा हैगा कि जे कोई माड़ा मोटा मिलदा गिलदा हैगा तो असीं उहदे नाल जिहड़ा हैगा ओह कर देना हैगा, फिट कर देना, ये नहीं हुंदा। आराम नाल पढ़ के आसानी नाल जिहड़ा हैगा बड़े ही फ्री माइंड दे नाल, खुले दिमाग दे नाल उहदा आंसर दिओ, तो तुसीं जरूर कामयाब होवोगे।